پاک امریکہ تعلقات میں بڑی پیش رفت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا تاریخی دورہ۔ وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کی امریکی صدر اور کابینہ سے اہم ملاقات ہوگی، پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے کے قریب ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی دورہ پاک امریکہ تعلقات اور عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری قیادت کی پہچان کی عکاسی کا مظہر ہے۔ ملاقات پاکستان کی عسکری قیادت پر بڑھتے ہوئے اعتماد اور اہمیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس مدعو کرنا امریکی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی اسٹریٹجک ترجیح کا واضح اشارہ ہے۔ فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت قرار۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، ملاقات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت ہے۔ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ٹرمپ نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ ایکس پر لکھا کہ 5 روزہ جنگ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ بھارت نے بدقسمتی سے امن کی کوششوں اور امریکی سفارتکاری کو مسترد کیا۔ ایران سرنڈر نہیں کرے گا، اپنے شہداء کے خون کو فراموش کرے گا اور نہ ہی اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر خاموش رہے گا۔ امریکہ نے مداخلت کی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ آیت اللہ خامنائی کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر دو ٹوک پیغام۔ اسرائیل پر حملے تیز کرنے کی ہدایت کر دی، کہا ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل کو خبردار کیا، دشمن مسلم ملکوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی، سزا ضرور ملے گی۔ اگر کسی قسم کی فوجی مداخلت کی گئی تو اس کے ایسے ناقابل تلافی نتائج نکلیں گے جن کا ازالہ ممکن نہیں۔ آج پھر پیغام ہے، غیر مشروط سرنڈر کر دے، ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی۔ امریکی صدر نے کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، ایران نے 2 ہفتے پہلے کیوں بات نہیں کی؟ میں کیا کرنا چاہتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ اسرائیلی وزیراعظم کو کہا ہے کہ کام جاری رکھیں۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو مزید مدد فراہم کرنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ آئندہ ہفتہ اہم ہے، ممکن ہے اس سے پہلے ہی بڑی کارروائی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کتنی دیر چلے گا۔ حال خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے اور پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیل کی کھلی جارحیت کی بھرپور مذمت، اسرائیلی اقدامات عالمی اور خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا عالمی برادری ایران اسرائیل فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ اسرائیل کی جارحیت سے ایران میں سینکڑوں لوگ شہید اور زخمی ہوئے۔ ایران کے صدر سے صورتحال پر گفتگو ہوئی، بولے IMF کو بتا دیا ہے پاکستان کی زراعت اس وقت شدید دباؤ میں ہے، زراعت پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، اور IMF نے بھی پاکستان کی یہ بات مان لی ہے۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، ہر طرف آگ اور تباہی۔ اسرائیل پر ہائپر سونک میزائل داغے، فرسٹ جنریشن فتح میزائل نے اسرائیلی دفاعی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ تل ابیب، اشدود، القدس، تطنیہ اور بنی براق بری طرح متاثر۔ شہری بنکرز میں گھس گئے اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس سامان کی تنصیبات۔ ایک بڑا گودام اور میروین کا حساس فضائی نگرانی کا اڈہ بھی نشانہ بنا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا کہ ایران اپنا پرامن جوہری پروگرام جاری رکھے گا۔ اسرائیل کی ایران پر بمباری، تہران میں کئی دھماکے، حملوں میں شہادتوں کی تعداد 270 ہو گئی۔ اسرائیلی ڈرونز، پروجیکٹائلز ایرانی دفاعی نظام کے سامنے ڈھیر۔ اسرائیل کی جانب سے داغے گئے 22 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے تازہ حملوں میں تہران سے مغربی علاقوں کو ملانے والی شاہراہ کو نشانہ بنایا۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے اقدامات جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ اماراتی صدر نے کہا، موجودہ صورتحال میں ایران اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں۔ UAE کا سلامتی کونسل سے تنازع فوری حل کروانے پر زور۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی کو ایرانی صدر کا خط موصول۔ روسی صدر پیوٹن کا اماراتی ہم منصب سے رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار، پیوٹن کا جنگ کے فوری خاتمے پر زور۔ فرانسیسی صدر نے کہا، سفارتکاری ہی واحد اور پائیدار راستہ ہے۔ روس نے بھی امریکہ کو جنگ میں مداخلت سے خبردار کر دیا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ کی ایران کے خلاف جارحیت میں براہ راست فوجی امداد سے باز رہنے کی تنبیہ۔
सरगई रियाबकोफ ने खबरदार किया कि इसराइल को अमरीका की बराह रास्त फौजी मदद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को शदीद तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा ईरान का इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करते हुए हर हरबा आजमाना इंतहाई जायज़ और दुरुस्त है। इसराइल की जानिब से इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म जारी है। मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत के हामी हैं। ईरान इसराइल जंग से न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन को भी सख्त खतरा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने 21 मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका बयान पढ़कर सुना दिया। मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने ईरान पर इसराइली जारहियत की सख्त मज़म्मत की। फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा भी किया गया। शहरी रहमान बोली, इसराइल ने वही जंग मुसल्लत की जो भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। ईरान में फंसे ज़ायरीन की वतन वापसी। ज़मीनी रास्ते अशकाबाद पहुंचने वाले 107 पाकिस्तानियों को PIA की खुसूसी परवाज़ के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया गया। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी पाक ईरान बॉर्डर के रास्ते तफ्तान पहुंचे। ज़ायरीन और तुलबा पर मुश्तमिल काफिला तफ्तान से कोयटा पहुंच गया। मशरिक़ वस्ता के शराकतदार ममालिक हमारे इरादों और मकासद को समझते हैं। खदशात के बावजूद ट्रंप ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि सदर ट्रंप कश्मीर पर सालसी में मदद के लिए तैयार हैं। वो अमन के लिए पेशकश कर चुके हैं। भारतीय वज़ीर आज़म का पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी किरदार तस्लीम करने से इनकार। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बताया, भारत किसी तीसरे फरीक की सालिसी नहीं मानेगा। मोदी ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार किया। ईरान इसराइल की जंग के दौरान अमरीकी तैयारों की गैर मामूली मुंतकली। गुज़िश्ता 3 रोज में कम अज कम 30 अमरीकी फौजी तैयारे अमरीकी अड्डों से यूरोप मुंतकिल हुए। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी टैंकर तैयारे लड़ाका तैयारों और बमबार तैयारों को दोबारा ईंधन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तैयारे ऐसे वक्त में मुंतकिल किए गए हैं जब इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इसराइल में ईरानी हमलों के बाद तबाही के मनाजिर। इसराइली मीडिया ने तबाहशुदा इमारतों की वीडियो जारी कर दी। ईरानी TV ने हमीदान में इसराइली तबाहशुदा ड्रोन की तस्वीर जारी की। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हरमेस ड्रोन को निशाना बनाया। ड्रोन का मलबा ईरानी मीडिया की फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ईरानी कौम और फोर्सेस का जज्बा सेहोनी होश खो बैठे। ईरानी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारी पर इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट की खुदकुशी की कोशिश। ईरानी फोर्सेस से खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी। मोसाद के एजेंट की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। गाजा में सिहोनी दहशतगर्दी। साले-उद-दीन में इंसानियत सोज हमलों में इमदादी मरकज़ पर आए 10 फ़लस्तीनी शहीद। ज़मीनी कार्रवाइयों में जबालिया में फ़लस्तीनियों के घर मिस्मार। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 89 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बने। 70 अफराद को इमदादी मराकज़ पर निशाना बनाया गया। 200 से ज़ायद ज़ख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। भारत का ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ना कोई इत्तेहादी बचा और ना ही सिफारती अखलाकियात। दी वायर के तज्जिए ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। चीन की पाकिस्तान की खुलकर हिमायत। अमेरिका भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ हो गया। आलमी सतह पर भारत तन्हाई का शिकार। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। बार और बेंच को कोई अलहदा नहीं कर सकता। लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। हमारी पहली तरजीह अवामी शिकायत दूर करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी कहते हैं कि हमारा हर इकदाम कानून की हुक्मरानी के लिए होगा। आप अपने बड़ों को भूले नहीं। नौजवानों को अपने बड़ों को फॉलो करना होगा। नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है। जजेस का फर्ज है अपनी सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करें। जजेस अखलाकी वजाहत और इदारा जाती जुर्रत के साथ ऐसा कर सकते हैं। अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अदलिया से मुतालिक अहम फैसला। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। तारीख उन लोगों को याद रखती है जो उसूल के दिफा में साबित कदम रहे।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। हो सकता है कल ही मुख्तसर हुक्मनामा जारी हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो केस में जजेस वकला को कहते रहे जल्दी दलाइल मुकम्मल कर लें, ताखीर ना करें। वकला के तवील दलाइल के सबब केस ताखीर का शिकार होता रहा। यूं जजेस रिटायर होने से जजेस की कंपोजिशन ही तब्दील हो गई। वफाकी हुकूमत का सोलर पैनल्स पर आयद सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। सोलर पैनल पर बजट में आयद 18% सेल्स टैक्स को कम करके 10% कर दिया गया। इसहाकदार कहते हैं हुकूमत ने बाज बजट तजवीज़ पर नजरसानी की है। बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बजट गुमराह कुन और फ्रॉड है, अवाम के गले पर छुरी फेरी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, नई माली साल का बजट इतलाक से कबल ही अपनी मौत आप मर जाएगा। असद कैसर बोले, हमें जायज़ हक से महरूम रखा जा रहा है, उसकी मजम्मत करता हूँ। इखराजात में कमी और आमदन बढ़ाने की कोशिश। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा, तरक्याती मंसूबों के लिए खतीर रकम रखी है। 8 शहरों में सेफ्टी के लिए 18 अरब मुख्तस किए। आज़ाद कश्मीर का 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। नए बजट में पिछले माली साल की निस्बत 86 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने कहा कि 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका और कसीर माली वसाइल की दस्तियाबी के अलावा मालियाती नज़्म ज़ब्त मुमकिन बनाना इस हुकूमत का बड़ा कारनामा है। मैंने कल मज़ा के खेज बातें सुनी। उन्होंने कहा, जी हमने बड़ा बढ़ा दिया है, बजट बढ़ा दिया हमने तलीम और सेहत का। तो उनका आलम यह है कि जितना उन्होंने बढ़ाया है उससे ज़्यादा जो है वो उनके पूरे बजट के बराबर हमारे तालीम और सेहत को सिर्फ मिला है। आज मेरे साथ जो है वो अपनी छत अपना घर, हमारा उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और बहुत सारे लोग यहाँ आए थे जिन्होंने जो है वो 50 लाख घर बनाने थे, वो 500 भी नहीं बना सके। दूसरे सूबों का जितना मजमूई बजट है उतना हमारा तालीम और सेहत का बजट है। कल बड़ा शोर था कि हमने तालीम और सेहत का बजट बढ़ा दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की केपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं कि कुछ लोग 50 लाख घर बनाने के दावे कर रहे थे, 500 भी नहीं बनाए। मेरा शहर शानदार था, है और रहेगा। कराची इतना बुरा होता तो 3 करोड़ लोग न रहते। बेहतरीन जिंदगी के लिए लोग आज भी कराची का रुख कर रहे हैं। ईरान इसराइल जंग, आलमी मंडी में तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 6 महीनों के दौरान खाम तेल की कीमत बुलंद सतह पर पहुंच गई। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल 74.84 डॉलर फी बैरल पर बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल 76.45 डॉलर फी बैरल हो गया। पाक ईरान सरहदी बंदिश, एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफा। 3 दिन में एलपीजी की कीमत में 110 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। नई कीमत 350 से भी तजावुज कर गई। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं, सरहद की बंदिश के बायस मुल्क में एलपीजी की किल्लत का सामना है। मामला हल न हुआ तो आइंदा 72 घंटों में एलपीजी की कीमत 500 रुपए फी किलो से ज्यादा हो जाएगी। कराची में जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग बुझा दी गई। 100 से ज्यादा दुकानें जल गईं। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर। रात गए लगी आग पर 4 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में घर में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मकतूलीन सगे भाई हैं। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने नबीला नामी खातून को शामिल तफ्तीश कर लिया। जैकबाबाद में धमाका, जाफर एक्सप्रेस बड़े नुकसान से बाल बाल बच गई। धमाके के नतीजे में पेशावर से कोयटा जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुंजा की अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने की जीटीवी न्यूज़ की खबर पर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का एक्शन। होटल को सील कर दिया गया, 15 लाख रुपए जुर्माना। झील के साथ मौजूद दीगर होटल मालिकान को सख्त एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। गैर मुल्की सयाह ने झील में सीवरेज का पानी छोड़े जाने और वहां से बदबू आने की निशानदेही की थी।
मुल्क के दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार, मैदानी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्मी का राज रहा। कराची में गुज़िश्ता रात से समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुल्क भर में 25 जून तक 2 जुलाई मानसून का पहला स्पेल मुतवक्के है। FIH नेशंस कप पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर सेमीफाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान पूल में भी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जुम्मे को फ्रांस से मुकाबला होगा। पाकिस्तान को आज न्यूजीलैंड के हाथों 4-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एरॉन फिंच ने बाबर आजम को दुनिया क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी करार दे दिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का कहना था कि BBL ड्राफ्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बाबर आजम से बड़ा कोई नाम नहीं है। एरॉन फिंच ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और बाबर आजम की बैटिंग की खुलकर तारीफ की। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी भी बिग बैश लीग के ड्राफ्ट का हिस्सा है। वो मैच विनर और बेहतरीन परफॉर्मर हैं। और सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1295वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महाफिल नातो समा का अहतमाम, ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात।